Malika Begum will carry the physical scars of that day for the rest of her life. She was 16 when the riot struck. तो उधर से लाया, आगे आदमी को बढ़ने दिया, पीछे से जब लेकर आए तो पीछे से भी काटना शुरू हुआ। जब बगीचा के पास पहुंचे तो आगे से भी काटना शुरू कर दिया। भागने का किसी को कहीं पर मौका नहीं मिला। People found her mutilated but alive in a pond. Malika went on to get married, but even that turned out a tragedy, with her husband deserting her, taking her money with him. She now ekes out a living. For the remaining residents of Chanderi locality in Bhagalpur, just about 9 families, Malika's plight is only the tip of a huge iceberg. लोग एक दो घर, दो चार घर थे तो औरत बच्चा भाग गया। कितनों ये लोग भरोसा देते हैं, लेकिन दिल में भरोसा होता ही नहीं कि क्या हो जाएगा। Just a day after the riots began, thousands of people belonging to a particular community surrounded the entire Lagaon village where presently I am standing. Then over 118 people were systematically butchered, their bodies first dumped in this particular pond. The water of this pond had turned red. Gradually, their bodies were picked up and they were buried inside the adjoining fields. Over 1,800 people died over nearly 2 months of violence. Justice has been handed down. Several have been convicted, but compensation issues persist. For people like Shama Devi, who lost 17 members of her family, life can never be the same again. 10,000 एक या 50,000 एक मिला सरकार की तरफ से, अभी तक लड़िए रहा। It remains a story of squeezing political brownie points and apathy. 21 years on, Bhagalpur struggles to its feet. The wounds will take some time to heal. The scars are still apparent. The irreparable loss caused to life and property due to frequent riots has left this city bleeding. What is required is a healing touch devoid of any political considerations. In Bhagalpur, widows in distress breaking into the high security zone outside the Raj Bhavan in Patna. Memories of the Bhagalpur riots that claimed 1,000 lives nearly 18 years ago are still fresh. For each person killed, 1 lakh rupees was given as compensation. But the families of the victims say the government's policies are biased. My mother-in-law, my husband were killed. The government gave nothing. Punjabi riot victims were given 3.5 lakhs. I got nothing, only 1 lakh. Lady you saw in that story, Malika Begum, a survivor of the riots, is with us tonight. Let's go to her. Malika Begum, आपके साथ जो हादसा हुआ था, भागलपुर में जो राइट्स हुए थे, आज जब इलेक्शन है बिहार में, कोई उस राइट की चर्चा नहीं कर रहे, क्यों? जी सर, ये तो मुझे भी पता नहीं क्यों नहीं चर्चा कर रहे, क्योंकि भूल गए हैं सब लोग। भूल गए, और आपको भूल गए, जो अन्याय हुआ है भागलपुर वो भूल गए। लगता तो ऐसे सर, जब याद नहीं करते तो भूल ही गए ना। तो आपके दिल में क्या होते जब आप इस बारे में सोचते हैं कि जो ऑलमोस्ट 2,000 लोग जो मारे गए हैं, वो उनकी याद जब मिटा नहीं जा रहे हैं, उनके बारे में कोई भी चर्चा नहीं कर रहे, कोई भी पार्टी, जेडीयू या आरजेडी या कांग्रेस या बीजेपी, क्या एक भी पॉलिटिशियन ने आप सुना है जो भागलपुर के बारे में बात कर रहे हैं अभी बिहार में? जी सर, भागलपुर के बारे में तो जब ये होता है इलेक्शन तो आती है बात, मगर वैसा भी कुछ तो हम सुने नहीं हैं, न्यूज में भी नहीं देखे, मगर बात तो होती है। जब इलेक्शन का टाइम होता तभी कभी कभी उछालते हैं कि मैं ये किया, मैं ये किया, मैं ये किया। वादा भी हर एक लोग किया बहुत सारा। आपको मिलने को कोई आया है कभी? नहीं, हमारे से कोई मिलने अभी नहीं आया है। आपको पेंशन मिल रहा है गवर्नमेंट से? जी नहीं। आपको कोई भी तरह की कॉम्पेंसेशन दी गई है? जी नहीं, वो माता पिता का जो मिला था, ये जो 3.5 लाख रुपया मुआवजा अभी जो मिली है, तो उनमें हम लोग 5 भाई बहन हैं, उनमें सबका 1,40,000 करके हिस्सा हुआ था, वही मुआवजा मिला है। और 1.25 लाख रुपया पैर का मिला था, जिसमें हमारा 15,000 रुपया काट लिया गया, 1,10,000 रुपया हमको मिला था।
Okay, Mani Khan, let me ask you, the real tragedy of what Malika Begum is telling us right now is that her story is multiplied at least 1,800 times over, perhaps 48,000 times over, because 48,000 families were made refugees of some sort. राइट जो हुआ तो लालू यादव का ही राज था। ये पहली बार सीतामढ़ी भागलपुर का स्पेशल कोर्ट हम बनवाया और सभी को सजा मिला, और जिसका मैं सर यादव का लोग नाम लेता। भागलपुर दंगों का करीब 20 साल पुराना मुद्दा बिहार के चुनावी मैदान में एक बार फिर छा गया है। लालू यादव सफाई दे रहे हैं तो उनके विरोधी उन पर चला रहे हैं आरोपों के तीर। आपको जानकारी पहले से मिली हुई है, ऐसे ही एक मामले में जिसे बंद कर दिया गया था, एक व्यक्ति को सजा भी हो चुकी है और वो व्यक्ति संयोग से वह हैं जिनको बचाने में लालू सरकार ने एड़ी चोटी का पसीना एक किया था और उनको सांप्रदायिक सद्भाव का खिताब भी दिया गया था। नीतीश क्यों ऐसा बोलता है? इसलिए कि जो साबरमती ट्रेन में जो आग लगा और उसकी जो फंडिंग आई उसमें इनको इंजेक्ट किया है नीतीश कुमार को, तब यहाँ पर इस तरह का इन्होंने बखेड़ा खड़ा किया। मस्जिद गिराने वाले और कांग्रेस पार्टी भी है गिराने वाला, बचाया नहीं है। ज्यादा पकपकी लोग करेंगे तो और बात हम बोलेंगे। अयोध्या मामले पर एक रैली में लालू ने जब कांग्रेस पर निशाना साधा तो कांग्रेस ने भी खोल दिया भागलपुर दंगों का पिटारा। उसी कामेश्वर यादव को अपने पूरे कार्यकाल में श्री लालू प्रसाद न सिर्फ संरक्षण देते रहे बल्कि उसको राष्ट्रीय जनता दल के नेता के रूप में और बड़े समाज सेवी के रूप में उसको इनाम भी दिलाया। जाहिर है भागलपुर दंगों में लालू की भूमिका का सवाल चुनावी राजनीति में रंग पकड़ता जा रहा है। राइट जो हुआ था उसमें सीधा पृष्ठभूमि में लाल कृष्ण आडवाणी है। आप जानो जो हमने कमीशन बनाया था 3 जजों का, याद है कि नहीं आप लोगों को, जिसमें बिल्कुल गिल्टी माना, यही ईंटा टिकवाए थे, यही पूजा कराए थे नीतीश जी के जो दोस्त हैं गार्जियन। दरअसल 1989 में पीएचपी के रामशिला पूजन कार्यक्रम के दौरान बिहार के भागलपुर जिले में कौमी दंगे हुए थे। उस समय प्रदेश में सत्येंद्र नारायण सिन्हा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी। इन दंगों के बाद ही 1990 में लालू ने बिहार की गद्दी संभाली थी। आज भी मामला अदालत में है और इसके मुख्य आरोपी कामेश्वर यादव को उम्र कैद की सजा दी जा चुकी है। जाहिर है चुनावी मौसम में यह मुद्दा कांग्रेस और लालू दोनों के लिए गले की हड्डी बन सकता है। स्टार न्यूज रिपोर्ट। Now Bihar enters the third phase of its elections tomorrow, but this time under the shadow of the 1989 Bhagalpur riots. Today is the 21st anniversary of those riots. Generally seen as India's worst, they killed 1,800 people and turned over 50,000 into refugees. An incredible 90% of them Muslims. Yet no senior official or politician has ever been held responsible for this gruesome violence. Tonight we look back at this gigantic crime. Does it still weigh on India's conscience or Bihar's politics? Or have the powerful succeeded in sweeping Bhagalpur under the carpet?